Hello friends, welcome to Omsars Academy. Today we are going to learn class 9th maths chapter 2 polynomials part 4 division of polynomials by long division algorithm method. Hello friends, welcome to Omsars Academy once again. Today we are going to discuss topic 4 of our part polynomials. Friends, in this part 4 we are going to discuss about how we can divide the polynomials, that is division of polynomials, as well as we are going to learn the remainder theorem. So friends, before starting this, let us do the basic part. Let us cover what are factors and multiples. Yes? What do you mean by factors and multiples? We have already learned in our previous classes that what is meant by factors, but let us revise it once again. That suppose, if say for example, that if I divide 12 by 2, we get the remainder. What will be my remainder? 0. Okay, that means 12 is exactly divisible by 2. 2 6 are 12, and what is the remainder? 0. Yes. Similarly, if I divide 12 by 3, again the remainder will be 0. If I divide 12 by 4, again the remainder will be 0. So friends, here these are exactly divisible. Okay, 12 is exactly divisible by 2, 12 is exactly divisible by 3, 12 is exactly divisible by 4. So this 2, 3 and 4 are called as factors of 12. 2, 3, 4 are called as factors of 12. And 12 is called as the multiple of 2, 3, 4. Multiple of 2, 3, 4. Right friends? Now this concept will be applying the same in the case of polynomials also. For example, let us rub this. For example, say there is one polynomial. Say 2x plus 8. We have already learned in class 8 division of these polynomials. So if I divide this 2x plus 8 polynomial by 2, how we were dividing in class 8? We were taking here there are two terms and 2 can be taken out as common. So what I'll take is 2 as a common. What will remain inside? X. 2 into x is 2x plus what into 2 is 8, so 4. So 2 4s are 8 divided by 2. Now this 2 gets cancelled. That means this polynomial 2x plus 8 is exactly divisible by 2. And what is the answer? X plus 4. And same way, here what we can say, 2 is a factor of polynomial 2x plus 8. ये मेरा polynomial था and 2 is a factor of this polynomial. And reversely if I want to say, then I can say 2x plus 8 is a multiple of 2. Right friends? Now, so friends, now come to the division of polynomials. Our topic is division of polynomials. Here, in this division of polynomial, we have already learned that this basic concept, dividend is equals to divisor into quotient
plus remainder. Okay, this concept only will be following in the division of polynomials. Here what we take dividend as p of x. So p of x is equal to what we take divisor as g of x into quotient is taken as q of x plus remainder is taken as r of x. Is it clear, friends? Now while dividing the polynomials, what we follow the concept is when I divide the polynomial, when we divide any polynomial p of x by g of x, that is, this is my dividend and this is my divisor. So when I divide any polynomial p of x by g of x, then there are two possibilities. But here what is the condition? When we divide the polynomial p of x by g of x, where degree of p of x, that is degree of the polynomial, should be greater than equal to g of x, then in this case, ठीक है, जब हम डिवाइड करते कोई भी पॉलिनोमियल p ऑफ x को g ऑफ x के द्वारा, तो क्या होनी चाहिए, मेरी डिग्री जो पॉलिनोमियल की है वो ग्रेटर देन इक्वल टू g ऑफ x होनी चाहिए. तो उस केसेस में, उस सर्कमस्टेंसेस में दो आउटकम्स हो सकते हैं. इफ r of x, that is my remainder, is 0, जब मैं डिवाइड करता हूं पॉलिनोमियल को g of x के द्वारा, तो हो सकता है कि मेरा r of x, that is remainder है, वो 0 आ सकता है. तो यदि 0 आ गया तो मेरा डिवीजन खत्म हो गया. इन दैट केस माय डिवीजन इज कंप्लीट. ठीक है, ये रूल हमें डिवाइड करते वक्त फॉलो करना है. सेकेंड केस में इसका ऑपोजिट होगा, दैट इफ r of x is not equal to 0. यदि ऐसा है कि मेरा रिमाइंडर 0 नहीं आता है, तो उसमें भी दो केस हो सकते हैं. वन केस में क्या हो सकता है कि द डिग्री ऑफ r of x इज लेस देन g of x. ठीक है, मतलब जो रिमाइंडर आएगा उसकी डिग्री जो है मेरे डिवाइजर की डिग्री से लेस होगी. तो उस केस में क्या होगा, माय डिवीजन इज कंप्लीट. सो अगेन द डिवीजन इज कंप्लीट. सो विल स्टॉप ओवर हियर. ये दोनों केसेस में हम स्टॉप हो जाएंगे. बट व्हाट इफ माय डिग्री ऑफ r of x इज ग्रेटर देन g of x. दैट मीन्स यदि मेरे रिमाइंडर की डिग्री जो है वो डिवाइजर की डिग्री से ग्रेटर आई, तो व्हाट आई हैव टू डू इज आई हैव टू कंटिन्यू डिवीजन फर्दर. ठीक है, तब मेरे को डिवीजन फर्दर कंटिन्यू करना पड़ेगा. कब तक कंटिन्यू करना पड़ेगा, जब तक कि मेरी डिग्री r of x की जो डिग्री है वो लेस देन g of x ना आ जाए, या r of x जो है वो 0 ना हो जाए. दैट मीन्स एकदम फुल्ली डिवाइड ना हो जाए, तब तक आई हैव टू कंटिन्यू दिस डिवीजन. ओके, लेट अस टेक वन एग्जांपल अबाउट दिस. नाउ open up your textbook and see the illustration. I am taking your textbook illustration only for your example. Take out example number 6 of textbook, page number 36. Now see, here what you are asked to find is divide p of x, that is polynomial having variable x, by divisor g of x, where p of x
is equal to x plus 3x square minus 1 and g of x is equal to 1 plus x. Now friends, ये आपने एक बार सीख लिया तो इट विल बी वेरी इजी टू डाइजेस्ट. सेम स्टेप्स सब में फॉलो करने हैं. नाउ सी व्हाट हाउ आई एम सॉल्विंग दिस सम. तो मेरा पॉलिनोमियल है p ऑफ x एंड उसको डिवाइड करना है किससे. दिस इज माई डिवाइजर g ऑफ x. दिस इज माई डिविडेंड. ये जो है मेरा डिविडेंड है एंड दिस इज माई डिवाइजर. फर्स्ट स्टेप while dividing what I have to do is, फर्स्ट स्टेप में जो पॉलिनोमियल है वो मुझे यहाँ पे लिखना है बट इन एन डिक्रीजिंग पावर फॉर्म. Okay, so here polynomial was what? X plus 3x square minus 1. So which was the highest power one? This was 3x square. तो ये मुझे पहले लिखना है 3x square. The power 2 is the highest one. This x raised to power 1. This is the second highest power. तो this is my second term and last is the constant term. तो इसको सीक्वेंस में अरेंज करूं तो क्या हो जाएगा 3x square. पहले लिखना है 3x स्क्वायर, देन द लेसर पावर देन दिस दैट इज प्लस x. x के आगे कुछ साइन नहीं है तो पुट इट एज प्लस x एंड लास्ट इज माय कांस्टेंट टर्म. उसके आगे कौन सी साइन है? -1. तो आई कीप -1 ओवर हियर एंड देन डिवाइड इट बाय दिस. इसको भी मुझे डिक्रीजिंग पावर फॉर्म में अरेंज करना है. तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? x बिकॉज दिस इज हैविंग द पावर 1 and this is constant. Constant हमेशा लास्ट में आएगा तो +1. Now I have to divide this whole by this. So what is my first step, friends? सबसे पहले तो क्या करना है? मुझे देखना है here what is the power? 3x. The power is 2 and my term is 3x square and here which is my first term x. तो सबसे पहला स्टेप क्या करना है? ये x है. x should be multiplied by what term जिससे मुझे 3x square मिल सके. ये आपके लिए इजी है. So how we can multiply x into x is x square. तो मेरा ये x square तो आ गया. तो x into x करूंगा तो x square. तो एक मेरा वेरिएबल x तो होगा ही होगा. ठीक है. Why? Because हमने पावर्स एंड एक्सपोनेंट्स में पढ़ा था कि पावर 1 plus 1 we get what? Power 2. If we multiply the same base with multiply the base having different powers, the same base having different powers, power are added. तो यहाँ पे क्या होगा? x into x will be what? x square. But मुझे क्या चाहिए? 3x square चाहिए. तो what I will multiply over here? 3. So x into 3x will become 3x square. So what is my first term is I multiply this x with 3x and then 1 with 3x. ओके, सो x इंटू 3x जो भी आंसर आएगा उसके नीचे लिखना है यहाँ पे. तो x इंटू 3x इज व्हाट? 3x स्क्वायर. ये मेरा आंसर है तो यहाँ पे 3x स्क्वायर लिखा. इज इट क्लियर? देन माय सेकंड टर्म वाज +1. सो +1 इंटू 3x. तो 1 इंटू 3x, ये +1 इंटू 3x आंसर विल बी 3x ओनली बिकॉज एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय 1 इज 3x. तो जो आंसर आया अगेन मुझे इसके नीचे लिखना है. तो इट वाज +3x. तो यहाँ पे +3x लिखना. देन व्हाट आई हैव टू डू इज, ये दोनों कट नहीं हो सकते. व्हाई? बिकॉज दे आर हैविंग द पॉजिटिव साइन. तो व्हाट आई हैव टू डू इज आई हैव टू अल्टर द साइंस सो दैट दे गेट डिडक्टेड. तो यहाँ प्लस की जगह मैं माइनस करूंगा, ये प्लस की जगह अगेन माइनस करूंगा. तो ये जो 3x स्क्वायर, ये बीच की साइन भूल जाए ना प्लस. नाउ वी हैव टू कंसीडर द लास्ट साइन. सो 3x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर, दिस विल गेट कैंसल एंड रिमाइंडर क्या हो जाएगा इसका? 0. सेकेंड टर्म में देखे तो यहाँ पे 1x है. x मीन्स 1 इज हिडन ओवर हियर. तो 1x माइनस 3x. तो 1 माइनस 3 कितना होता है? -2. सो इट विल बी -2x. x रहेगा ऐसे ही. सो 1x minus 2x, दिस आर बोथ लाइक टर्म. x पीछे लग रहा है तो जो भी आंसर आएगा उसके पीछे भी x लगेगा. तो 1 minus 3 दैट इज -2x एंड ऊपर से वी बोरोड -1. ओके, नाउ ये 0 नहीं लिखे तो भी चलता है. एंड नाउ माय फर्स्ट टर्म इज
my first part is covered. Now again this part I have to repeat it another time. अभी देखो इसका फर्स्ट टर्म और इसका फर्स्ट टर्म. So what is my first term over here? X. And what is my first term over here? Minus 2x. तो अगेन मैं यहाँ पे करता हूँ x into what should be multiplied so that मुझे ये टर्म मिलना चाहिए फर्स्ट टर्म, दैट इज माइनस 2x. तो यहाँ पे प्लस है और आंसर में मुझे माइनस चाहिए, तो दिस टर्म शुड बी -1. तो ये माइनस आएगा यहाँ पे, एंड x into -2 यदि मैं करता हूँ x into -2, तो -2 into x will become what? -2x. So what is my another term that I have to multiply with this x is -2. तो अभी क्या करना है, ये टर्म जो है -2 उसको x से भी मल्टीप्लाई करना है और +1 से भी मल्टीप्लाई करना है. तो x into -2 is what? -2x. ये जो आंसर आया -2x वो मैंने लिखा. फिर सेकेंड टर्म मेरा कौन सा था? +1. तो सेम वे +1 into what should be equal to +1 into -2. ये जो -2 है उसके साथ ही मुझे 1 मल्टीप्लाई करना है. तो 1 into -2 विल बी व्हाट? -2. तो यहाँ पे जो आंसर आएगा मेरा -2 आएगा. तो what is the next step now? ये -2x दोनों सिमिलर साइन है, दे विल नॉट गेट डिडक्टेड. तो मेरे को अगेन साइन चेंज करनी है. तो फ्रेंड्स जब मैं एक साइन चेंज करता हूं तो आई हैव टू चेंज द साइन ऑफ ऑल द टर्म्स. तो यहाँ पे भी मैंने -3x किया था, फिर दूसरे टर्म की भी साइन मेरे को चेंज करनी पड़ी. ठीक है, तीसरा टर्म तो था ही नहीं यहाँ पे, तो उसकी तो कोई चिंता ही नहीं थी. अभी यहाँ पे भी मैं ये पहले टर्म की माइनस की जगह प्लस कर दूं तो दिस विल गेट डिडक्टेड. देन ये सेकेंड टर्म की भी माइनस की जगह मुझे क्या करना पड़ेगा? प्लस से. सो नाउ व्हाट विल बी द आंसर? -2x plus 2x, दिस विल गेट 0. ये बीच की साइन मैंने कहा भूल जाना है, यहाँ पे फिंगर रख दो एंड यू कैन से दैट -2x plus 2x will become what? 0. यहाँ पे भी बीच की साइन भूल जाओ तो -1 plus 2, -1 plus 2 क्या हो जाएगा? दैट इज 2 minus 1 करो या -1 plus 2, 1 will be the remainder, +1 will be the remainder. Now ये रिमाइंडर जो आया ये +1, दिस इज माई +1 इज द रिमाइंडर. नाउ रिमाइंडर इज अ कांस्टेंट टर्म. ठीक है, तो मैंने जो इसके पहले आपको रूल सिखाया था, व्हाट शुड बी द रिमाइंडर? रिमाइंडर की जो डिग्री है दैट शुड बी 0. तो 0 तो आई नहीं. ठीक है, फर्स्ट रूल तो नहीं है. दूसरा मैंने आपको सिखाया था कि इफ इट इज नॉट इक्वल टू 0 तो क्या होना चाहिए? डिग्री ऑफ द रिमाइंडर r of x शुड बी लेस देन g of x. नाउ सी दिस इज माई g of x. ये मेरा g of x था और ये मेरा r of x है, दैट इज रिमाइंडर. ये मेरा कोशेंट है, दिस इज माई कोशेंट. तो डिग्री ऑफ r of x कांस्टेंट है तो उसकी डिग्री क्या होगी? 0. ठीक है, तो डिग्री ऑफ दिस r of x शुड बी लेस देन g of x. g of x की डिग्री क्या थी? 1, और कांस्टेंट है, इसकी डिग्री क्या है? 0. तो डिवीजन इज कंप्लीट. तो ये हैंस दिस इज माई रिमाइंडर और मेरा डिवीजन कंप्लीट. तो व्हाट इज माई q of x? q of x मतलब कोशेंट क्या है? मेरा आंसर 3x - 2. and what is my remainder? That is r of x. r of x is 1. So friends, this way we do the division of polynomials, and this method by which we did this division is called as long division algorithm. ये method क्या कहलाती है? long division algorithm. long division method भी short में बोलते हैं. ठीक है, let us take one another example also. Now see friends, take us example number 7 of textbook. textbook का 7 example क्या कहता है? Divide polynomial 3x4 minus 4x cube minus 3x minus 1 by x minus 1. ठीक है, सो फ्रेंड्स यहाँ पे भी मैं वही स्टेप्स फॉलो करूंगा. सी फर्स्टली व्हाट वी शुड से सी इन दिस दैट द पॉलिनोमियल which is to be divided
वो सब जो है उसके जो डिक्रीजिंग पावर फॉर्म में होना चाहिए. दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल ड्यूरिंग द लॉन्ग डिवीजन मेथड. तो पहला जो है ये स्टैंडर्ड फॉर्म है. यस, इसका पावर क्या है 4, सेकंड का पावर क्या है 3, थर्ड का पावर क्या है 1. सो इट इज नॉट द स्टैंडर्ड फॉर्म. 2 मिसिंग है पावर. तो अभी मैं क्या करूंगा, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख रहा हूं. तो पहले का पावर 3x4 will not get completed. 3x raised to 4 minus 4x raised to power 3. फिर इधर पावर 2 वाला कोई टर्म नहीं था, तो व्हाट आई डू इज प्लस 0x to the power 2 और 0x स्क्वायर ले लिया. ठीक है. फिर 1 पावर वाला टर्म था, वो मैंने ऐसे ही लिख दिया. -3x था तो -3x रेज टू पावर 1, दैट इज -3x. ठीक है. एंड फिर कांस्टेंट था -1. इज इट क्लियर? तो इसको ऐसे ही फॉर्म में लिख दिया मैंने. नाउ फ्रेंड्स, इफ आई डिवाइड दिस बाय g ऑफ x, तो g ऑफ x भी डिक्रीजिंग पावर में होना चाहिए. अभी देखो इसका पावर 1 है और फिर कांस्टेंट है, तो इट इज इन द सेम सीक्वेंस. तो x -1. नाउ व्हाट वी हैव टू सी, फर्स्ट see the first term of this and this. What should be multiplied with this to get the first term of this? That is x के साथ क्या multiply करूंगा मैं जिससे मुझे ये first term मिले, that is 3x4. Okay, so we know इस x का पावर क्या है 1, और एक्सपोनेंशियल पावर वाले चैप्टर में हमने देखा था कि बेस सेम होना चाहिए. पावर अलग अलग हो तो पावर का एडिशन होके 4 हो सकता है. तो what I need over here is I need the same base with the power 3. तो ये x4 हो जाएगा. तो x raised to 1 into x raised to 3 x4, पर आगे 3 भी है. तो what I need over here is I have to put 3 before this, that is 3x cube. तो x1 into 3x cube क्या हो जाएगा 3x4. तो यहाँ पे पहला टर्म मेरा जो है वो क्या होगा 3x3. नाउ ये पहले के साथ दूसरा टर्म तो जुड़ा ही है. तो व्हेन आई मल्टीप्लाई दिस फर्स्ट टर्म विद दिस, देन आई हैव टू मल्टीप्लाई दिस सेकंड टर्म विद द सेम नंबर. तो सेकंड टर्म मेरा क्या था -1. तो -1 इनटू क्या होगा, वही नंबर से मल्टीप्लाई करो जो क्वोशंट में हमने पहला टर्म लिखा है. तो 3x3. तो माइनस इंटू प्लस विल बी माइनस, एंड 1 into 3 is 3x3. तो आंसर क्या रहेगा 3x3. अच्छा, अभी ये मल्टीप्लाई करने के बाद पहले का आंसर क्या आया था हमारा 3x4, वो आंसर यहाँ नीचे लिखना है. एंड दूसरे टर्म को इसके साथ मल्टीप्लाई करने पर आंसर क्या मिला था -3x3. तो यहाँ क्यूब वाले के नीचे लिखना है. ठीक है. नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज, ये दोनों प्लस प्लस है तो वी हैव टू चेंज द साइन. तो यहाँ प्लस की जगह माइनस करेंगे और ये माइनस की प्लस करेंगे, पूरे सबकी साइंस बदल जाएगी. तो these will get now deducted. 3x4 minus 3x4 will become 0 and minus 4x cube plus 3x. तो -4 plus 3, बीच का जो साइन है वो भूल जाना है. तो -4 plus 3 will be what, -1, और x cube तो रहेगा, x cube will remain as it is, that is -1x cube. Then friends, borrow down the another term from upside, that is plus 0x square. अभी सेम वापस वही करना है. अभी इसका फर्स्ट टर्म एंड इसका फर्स्ट टर्म. ठीक है. यहाँ पे 2 टर्म है तो यहाँ पे डिवीजन में भी 2 टर्म होने चाहिए. इज इट क्लियर? तो यहाँ पे अभी देखो इसका फर्स्ट टर्म एंड इसका फर्स्ट टर्म, x शुड बी मल्टीप्लाइड बाय व्हाट, सो दैट आई गेट -1x3. तो आई एम डूइंग ओवर हियर x शुड बी मल्टीप्लाइड बाय व्हाट, सो दैट आई गेट -x3. तो x इंटू माइनस, तो माइनस मिलेगा मुझे, तो एक माइनस टर्म होना चाहिए. प्लस इंटू माइनस विल बिकम व्हाट, माइनस. एंड इधर x का पावर 1 है तो व्हाट शुड बी द अनदर पावर ऑफ x, सो दैट वो x3 हो जाएगा. x रेज टू पावर 2, 1 plus 2 विल बिकम व्हाट 3. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x इंटू -x2. तो ये मेरा जो दूसरा टर्म आएगा वो क्या होगा -x2. इज इट क्लियर? तो ये मेरा -x3 आएगा, दैट इज -1x3. 1 लिखे ना लिखे कुछ फर्क नहीं पड़ता है. अगेन दूसरा टर्म भी मुझे इससे मल्टीप्लाई करना है जो मैंने नया टर्म लिया है क्वोशंट में, दैट इज -1 इंटू द सेम सेकेंड टर्म, दैट इज -x2. तो माइनस इंटू माइनस, यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिस माइनस इंटू माइनस ये प्लस हो जाएगा. तो ये आंसर प्लस में आएगा.
एंड 1 इंटू एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर। तो ये जो आंसर आया वो मैं इसके नीचे लिखता हूं माइनस एक्स क्यूब एंड अनदर आंसर वाज व्हाट प्लस एक्स स्क्वायर दैट इज 1 एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे आगे मैं कुछ नहीं है कोएफिशिएंट, तो आई कैन पुट 1 ओवर हियर फॉर जस्ट माय अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, अभी व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप, ये माइनस वन एक्स क्यूब कट नहीं होगा, तो आई हैव टू चेंज द साइन ऑफ दिस ऑल्सो एंड द अनदर टर्म ऑल्सो। तो प्लस की साइन जो है वो माइनस हो जाएगी, माइनस नीचे वाली ही साइन बदलेगी, ऊपर वाली नहीं बदलेगी। दिस विल गेट डिडक्टेड माइनस 1 एक्स क्यूब प्लस 1 एक्स क्यूब, बीच वाली साइन में मिटा देता हूं तो क्या हो जाएगा कैंसल्ड, एंड यहाँ पे भी बीच की प्लस साइन हटा दे तो 0 एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर, इट विल बी माइनस 1 एक्स स्क्वायर। इज इट क्लियर? तो ये मेरा रिमाइंडर है। अभी भी रिमाइंडर की डिग्री जो है इससे ज्यादा है, तो व्हाट आई हैव टू डू, अगेन आई हैव टू बोरो वन टर्म फ्रॉम अबव, तो माइनस 3x। नाउ अभी क्या करना है, x के साथ इसका फर्स्ट टर्म और इसका फर्स्ट टर्म देखना है। तो x के साथ मैं क्या मल्टीप्लाई करूं, व्हाट शुड बी मल्टीप्लाइड विथ x सो दैट आई गेट आंसर माइनस 1 एक्स स्क्वायर। तो इन दिस केस क्या हो जाएगा, इधर भी मुझे माइनस चाहिए तो ये टर्म माइनस ही होना चाहिए, तो x शुड बी मल्टीप्लाइड विथ वन माइनस टर्म, नेगेटिव टर्म, तो आंसर नेगेटिव आएगा, प्लस इंटू माइनस विल बी माइनस। एंड ये x तो है ऑलरेडी जिसका पावर 1 है, मुझे यहाँ आंसर में x का पावर 2 चाहिए, तो और x तो मल्टीप्लाई करना है बट विद द पावर 1, सो दैट 1 प्लस 1 पावर क्या हो जाएगा 2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x इंटू माइनस एक्स विल बी माइनस 1 एक्स स्क्वायर। तो ये थर्ड टर्म जो मेरा क्वेश्चन का है वो क्या होगा माइनस एक्स। इज इट क्लियर फ्रेंड्स? नाउ व्हाट आई हैव टू डू इज सेकेंड टर्म भी उसी टर्म से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। सेकेंड टर्म क्या है माइनस 1, तो माइनस 1 इंटू जो थर्ड टर्म था क्वेश्चन का क्या था माइनस एक्स, उससे ही मल्टीप्लाई करो, तो माइनस इंटू माइनस विल बी व्हाट प्लस, एंड 1 इंटू एक्स विल बी व्हाट एक्स। तो ये दोनों जो टर्म आया आंसर वो मुझे यहाँ पे लिखना है, तो यहाँ माइनस 1 एक्स स्क्वायर, ये दोनों को मल्टीप्लाई करो, दैट इज माइनस 1 इंटू माइनस एक्स इज व्हाट प्लस एक्स। इज इट क्लियर? देन अगेन आई हैव टू चेंज द साइन, माइनस माइनस तो कट नहीं हो सकता है, तो ये नीचे वाले माइनस की साइन बदलूंगा मैं प्लस, और ये नीचे वाले प्लस की साइन बदल जाएगी माइनस। तो अभी क्या हो जाएगा माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। एंड दूसरे टर्म में देखे तो माइनस 3x माइनस 1x, ये x है तो आई कैन पुट 1 ओवर हियर, तो माइनस 3x माइनस 1x क्या हो जाएगा माइनस 4x हो जाएगा, एंड ऊपर से क्या कैरी होगा माइनस 1। इज इट क्लियर? नाउ फ्रेंड्स यहाँ पे अभी इसका फर्स्ट टर्म एंड इसका फर्स्ट टर्म, अगेन इसकी डिग्री जो है वो सेम है, तो व्हाट वी विल डू के व्हाट शुड बी मल्टीप्लाइड विथ x सो दैट आई गेट माइनस 4x। तो x के साथ क्या मल्टीप्लाई करे तो मुझे ये टर्म मिलेगा माइनस 4x। ठीक है, तो x शुड बी मल्टीप्लाइड विथ माइनस 4, तो मुझे माइनस 4x मिलेगा, तो ये मेरा लास्ट जो टर्म होगा वो क्या होगा माइनस 4। सो x इंटू माइनस 4 विल बी व्हाट माइनस 4x, एंड सेकेंड टर्म क्या था मेरा माइनस 1 इंटू माइनस 4, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ माइनस 1 इंटू माइनस 4। ये सम में मैं आपको दिखा के कर रहा हूँ, नेक्स्ट सम ऑनवर्ड्स आई विल बी डूइंग द डायरेक्ट मेथड। ये सब जो है मैं इधर से भी डायरेक्ट मल्टीप्लाई करूंगा। इज इट क्लियर? नाउ सी माइनस 1 इंटू माइनस 4 क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 1 4 जार 4, तो आंसर विल बी व्हाट 4। अभी ये दो टर्म है वो यहाँ पे लिखना है, तो पहला टर्म तो माइनस 4x और दूसरा टर्म प्लस 4 था, तो व्हाट आई विल राइट ओवर हियर प्लस 4। अगेन मुझे क्या करना है, साइंस बदलनी है, माइनस 4x कट नहीं हो सकता, तो माइनस की प्लस और ये प्लस की माइनस साइन हो जाएगी। नाउ इट गेट्स डिडक्टेड, 4x माइनस 4x प्लस 4x विल गेट कैंसल्ड, एंड माइनस 1 माइनस 4 आंसर विल बी व्हाट माइनस 5। सो दिस इज हाउ फ्रेंड्स वी डू द division of polynomials. Is it clear? Hope I have explained it in an easy manner. Okay students, now next example. Example number 8. See the example.
एग्जाम्पल 8 में क्या लगा है, फाइंड द रिमाइंडर obtained on dividing p of x is equal to, that is polynomial p of x equals to x cube plus 1 by x plus 1. तो ये मेरा polynomial है p of x and this is my g of x. ओके, तो क्या करना है, मुझे सबसे पहले तो इसको डिक्रीजिंग पावर फॉर्म में लिखना है. तो इधर तो एक ही पावर है 3, तो 2 और 1 दोनों पावर गायब है. तो what I will do is x raised to power 3 plus what I will do 0x square, ये 2 पावर आ गया, 1 पावर भी गायब था, तो I will write 0x raised to power 1, that is 0x, and plus constant टर्म कौन सा था, 1. उसको डिवाइड करना है किसके साथ, g of x. तो वो भी डिक्रीजिंग पावर फॉर्म में है, ये पावर 1 एंड कांस्टेंट, सो x plus 1. सेम मेथड नाउ आई एम फॉलोइंग. ठीक है, अभी मैं देखो वो यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ, मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ. तो x इंटू वॉट इज x क्यूब, x मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर विल बी वॉट, x क्यूब. तो मैंने x इंटू एक्स स्क्वायर किया तो x क्यूब आया. सेम वे अभी दूसरा टर्म भी इससे मल्टीप्लाई करना है, तो प्लस 1 इंटू प्लस, तो प्लस इंटू प्लस विल बी वॉट, प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1x स्क्वायर. ओके, ये दो टर्म्स हो गए. नाउ व्हाट आई हैव टू डू इज, ये दोनों x क्यूब कैंसिल नहीं हो सकते हैं, आई हैव टू चेंज द साइन. यहाँ पे भी मेरे को साइन बदलनी पड़ेगी. नाउ दिस x क्यूब माइनस x क्यूब विल गेट कैंसल एंड 0x स्क्वायर माइनस 1x स्क्वायर, आंसर विल बी माइनस 1x स्क्वायर. देन बोरो 1 फ्रॉम अबव, दैट इज 0x ऊपर से बोरो होगा, देन ब्रॉट डाउन, एंड फिर क्या होगा, यहाँ पे देखो इसका फर्स्ट टर्म और इसका फर्स्ट टर्म, तो x इंटू वॉट इज माइनस 1x. अभी देखो यहाँ नेगेटिव है, तो मेरा जो मल्टीप्लाइंग टर्म है वो भी नेगेटिव आना चाहिए. तो x इंटू माइनस 1x, दैट इज ओनली x. तो x इंटू माइनस एक्स इज वॉट, माइनस एक्स स्क्वायर. आगे 1 लगा दो तो भी चलता है. एंड सेकेंड टर्म कौन सा था मेरा, प्लस 1. तो प्लस 1 इंटू माइनस एक्स, प्लस इंटू माइनस वॉट, इट विल बी माइनस 1 इंटू एक्स, क्या हो जाएगा, 1x. फिर क्या होगा, आई हैव टू चेंज दिस साइन, ये माइनस की प्लस हो जाएगी, ये प्लस की ये माइनस की अगेन प्लस हो जाएगी. तो दिस विल गेट कैंसल्ड एंड 0x प्लस 1x, तो आंसर क्या रहेगा, 1x. ऊपर से 1 विल बी ब्रॉट डाउन, प्लस 1. देन अगेन आई हैव टू सी दिस फर्स्ट टर्म एंड दिस फर्स्ट टर्म. तो ये 1x लिखो ना लिखो कुछ फर्क नहीं पड़ता है, x और इसका भी x है. तो x इंटू वॉट इज x, तो आई नो x इंटू 1 इज x. तो x should be multiplied with plus 1 so that I'll get x. तो यहाँ पे x. Is it clear? x into plus 1. Plus into plus will be plus. X into 1 is x. Another term was plus 1. So plus into plus is plus. And 1 into 1 क्या हो जाएगा, 1. Is it clear? तो यहाँ पे अभी डिडक्ट नहीं हो सकता है, तो what I have to do is I have to change the sign. ये plus x की minus x और plus 1 की minus 1 हो जाएगी. This will get cancelled and this will get cancelled. Remainder over here will be 0. So what is my q of x over here? q of x मेरा क्या आया था, x square minus x plus 1. And what was my r of x? Remainder is what? 0. तो इससे हम कह सकते हैं कि x plus 1 को मतलब पॉलिनोमियल जो है x क्यूब plus 1, उसको जब मैं डिवाइड करता हूँ x plus 1 के साथ, तो it is exactly divisible and I get the remainder 0. So by this what I can say, x plus 1 is a factor of this polynomial. Is it clear? Okay friends. So friends, we are completing this division of polynomials topic, and what method we have learned is long division algorithm method. Okay friends, thank you. Thank you friends for watching our video. For further part 5, please click on like and subscribe button. Thank you.